देखो टट्टी के रास्ते में ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? देखो जी, जो मैं शब्द बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एक बार जो पेशेंट की पेट अच्छे से साफ हो जाए तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है, स्वास्थ्य रहता है। अब दिन में 5 बार 6 बार जा रहा है तो उसको बोलते हैं आंतों में सोजिश हो जाती है, जिसको बोलते हैं सिंगरेणी। टट्टी भी 12 प्रकार की होती है। एक किसी की जो लींड जो होती है पूरी लंबी आ जाए ऐसे तो वो बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। 12 तरह ਦੀ। हाँ जी। बवासीर का इलाज सही टाइम पे नहीं होता फिर वो कैंसर भी बन सकता है। मल द्वार के अंदर, मलाशय के अंदर बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं गुदा में। हमारे पास पेशेंट हजारों आते हैं। मेरे हॉस्पिटल लुधियाना में डेली पेशेंट 5 से 6 पेशेंट के कैंसर आते हैं। डेली पेशेंट को, कुछ पेशेंट को दर्द होता है, कुछ पेशेंट को दर्द नहीं होता कैंसर में। वो लास्ट स्टेज पे जाके पता लगता है पेशेंट को। कई बार आंतों में सोजिश के कारण म्यूकस भी आता है, जिससे कि लैटिंगर से जलन दर्द वगैरह बना रहता है, मिर्ची सी लगी रहती है पेशेंट को। और जो जलन एसिडिटी होती है ऊपर जाती है, इसोफेगस में जाती है यहाँ पे, तो यहाँ जलन करती है। टट्टीग्रस्त है नीचे जलन करती है। इसके अलावा फिर आ जाती है बवासीर। टट्टीग्रस्त से साफ ब्लड आता है, लाल डार्क ब्लड आता है, तो बवासीर है। अब जोर लगाते रहोगे, नसें फुलाते रहोगे, प्रेशर पड़ेगा नहीं। एक तो इंग्लिश सीटों बैठे हो, ऐसे ही बैठे हो, तुम मोरी खुल नहीं रही, जोर लगा नहीं रही। एक बार फिल्म देखेगा, एक बार इंस्टा रील देखेगा, फिर जोर लगाए, फिर इंस्टा रील देखेगा। पबजी गेम आया था, हमारे पास इतने पेशेंट आते थे, हमें ये पूछता था, भैया पबजी खेलते हो? पबजी दे करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेशेंट्स आते थे। हाँ पबजी ना जी। मैं कैसे पता? मैं बेटा जब तो तुझे कब्जी हो गई। हमारा तो परमानेंट इलाज होता है और गारंटी हम लिख कर देते हैं, दोबारा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੱਕੂ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਟ ਟਾਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨੋਰਮਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਾਇਲ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। तो सत श्री अकाल सभी को। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਇਲਸ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਟ ਟਾਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਹਿਰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ? देखो शर्माते इसलिए है कि जो बीमारी होती है ये सेंसिटिवेरियम होती है, ठीक है, टट्टी के रास्ते, जिससे कि ये प्रॉब्लम बनती है। अब लोग जो गुदा होता है, जो एनल कैनाल होता है, एनएस होता है, इसको गलत धारणा मानते हैं कि ये धारणा आपसे नहीं, पुराने समय से लोगों की गलत धारणा होती है कि बवासीर गलत काम करने से होती है, पर ऐसा नहीं है। बवासीर जो होती है अच्छा दिनचर्या ना होने से, खाना पीना अच्छे से ना होने से,
लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम होती है। ये पुराने समय में भी होती थी, अब भी होती है। पहले कम रहती थी, लोग जागरूक नहीं थे, ठीक है। पर पुराने समय में क्या है, लोगों का खाना पीना इतना अच्छा होता था, व्यायाम इतना होता था, पैदल चलना ज़्यादा होता था। जब वो टट्टी करने के लिए जाते थे 3-4 किलोमीटर जाना होता था उनका, 3-4 किलोमीटर आना था, खेतों में जाते थे और पानी वगैरह पीते, घड़े का पानी पीते थे। घड़े का पानी पीने से वैसे ही पेशेंट का पेट साफ रहता था, टॉक्सिन नहीं होते थे गुदा में, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं फैलता था, ठीक है। और एक चीज़ से ये भी है, बेनिफिट्स ही है, सुबह के टाइम लोग लस्सी वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते थे, तवे का खाना नहीं खाते थे, चूल्हे की रोटी वगैरह खाते थे, बिल्कुल सही। उससे भी पेट साफ ऑटोमेटिकली रहता था। दूध वगैरह होता था, प्रॉपर कैल्शियम होता था, दूध पीने से पेट साफ रहता था। आप तो आजकल देख लीजिए सब चीज़ों में मिलावट आ गई है सर। लस्सी फायदेमंद होती है? हाँ जी, लस्सी फायदेमंद इसलिए होती है, उसको पीने से डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है। उसके अंदर जैसे आप जीरा है, ठीक है, सिंधा नमक है, जीरे को भून के आप लस्सी के अंदर डाल के लेंगे, उसको फेंट के तो बढ़िया रहता है। गर्मी में लस्सी पीने से पेट साफ रहता है, ये अमृत के समान मानी गई है। ਲੱਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੱਸੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। मतलब ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਤੋਂ दूर हो रहे हैं ਤੇ बीमारियां ਦੇ ਨੇੜੇ हो रहे हैं। आज के टाइम में देखो लस्सी से भी दूर हो रहे हैं लोग, दूध से भी दूर हो रहे हैं। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, आप कई रिश्तेदारी में जाते हैं आजकल, तो अगर नॉन वेज, अगर आपको नॉन वेज या शराब ना दी जाए तो लगता है भी इस खातिरदारी नहीं हुई। हाँ जी, बिल्कुल सही गल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਵੀ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਾਸ ਫੂਸ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ नहीं जाना जी। ਤੇ ਇਹ नुकसानदेही हैगा? देखो जी, कोई भी आप अल्कोहल लीजिए या नॉन वेज लीजिए, ये देखो ये मांसाहारी चीज़ें जो हैं ये खाने से नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसे होती हैं, अगर आपको प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वो तो वेज सब्जियों में भी है, आप उससे भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा कि आप मांस में सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर लोगों की धारणा ऐसे हो गई है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो चीज़ें जो खाते हो नुकसानदायक इसलिए होती है, जैसे अल्कोहल आप ज़्यादा लेते हो, लीवर को भी ख़राब करती है, किडनी को भी ख़राब करती है, लीवर सिरोसिस भी होती है। और जो भी चीज़ आपके अति करेंगे नुकसान तो करेगी जी। चिकन ते शराब दोनों जो इकट्ठे बंदा पी जाता? बिल्कुल पीता है, तो उससे तासीर गर्म होती है ना। अगले दिन मान लो आज इंसान ने एक बोतल शराब पी है, नॉन वेज वगैरह खाया है, अगले दिन देखिए उसकी हालत क्या होती है। ग्लूकोन डी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की दिमाग में कमी हो जाती है, पूरे दिन बेड पे लेटा रहता है, खाना पीना नहीं खाता, वॉमिटिंग करता, घूमता है, सर चकराता है, सर दर्द रहता है, हाँ बीपी डाउन होने लगता है। और धीरे धीरे जो है इंसान कभी कभार लेता है, धीरे धीरे उसकी फिर उसको आदत पड़ जाती है, फिर डेली पिएगा। पीने तो बाद फिर नशे वाले भी जा सकते हैं, नशे वाले भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आजकल आप देखते हैं कितनी दुर्घटना होती है, आप न्यूज़ में देखते हैं शराब पी के ऐसा हो गया, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, ये एक्सीडेंट हो गया, तो नुकसानदायक तो है। चलो कभी कभार कोई इंसान लेता है तो चलो अलग बात है, पर डेली रूटीन में तो कोई भी चीज़ आप लेंगे तो नुकसानदायक रहेगी। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਇਲਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। तो लोगों को आप देख लीजिए सन 2000 के बाद ही लोगों को पाइल्स के बारे में जागरूक हुआ है। जब तक सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, डिजिटल नहीं था, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं। क्योंकि पुराने समय में इतने लोग जागरूक नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था पाइल्स क्या होती है, बवासीर होता क्या है, इसके कितने नाम अर्स है, हेमोराइड्स है, क्या चीज़ है। मैं सवाल पूछना भी असल से बवासीर टट्टी की है। देखो टट्टी के रस्ते में लग रहा ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं पहला छिट गया सी लोकां दे वास्ते ਇਹ शब्द सही है जो ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ हो। देखो जी, जो मैं शब्द बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं बोलूँ एनल कैनाल,
एनल कैनाल समझ में नहीं आया क्योंकि इंग्लिश वर्ड है। मलद्वार बोलूंगा, कुछ लोग समझेंगे नहीं समझेंगे। टट्टी एक ऐसा वर्ड है जो सब समझ जाएंगे क्योंकि जो गुदा का रास्ता होता है, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ डॉक्टर है MBBS है ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਟੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ देखो उससे क्या होता है, जो उसका जो रूप जो नाम है हिंदी में वो आपको बता रहा हूँ ताकि लोग जागरूक हो पाए, अच्छे से मालूम पाए। टट्टी के रास्ते में जोर लगाने से, जैसे बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं, ज्यादा देर जोर लगाते रहेंगे तो नसें होती हैं, 3 नसें जोर लगा लगा के फूल जाती हैं तो लैट्रिन रास्ता कम हो जाता है, जगह कम हो जाती है, जिससे टट्टी साफ आएगी नहीं। फिर कितनी दवाई खाओ, कोई सा चूरन लो, चूरन लेंगे, आज लेंगे आधा चम्मच लेंगे, परसों आधा चम्मच, फिर 1 चम्मच, फिर 1.5 चम्मच। चूर्ण क्या करता है, कोई भी चूर्ण होता है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, उससे क्या होता है आपको लैट्रिन टट्टी पतली होकर बाहर तो आ जाती है पर लैट्रिन खुल के नहीं आती, थोड़ी बाहर आ गई आपको लगेगा, फिर कुछ देर बाद फिर लगेगा लैट्रिन आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें पेशेंट 3 बार या 4 बार या 5 बार जाना पड़ता है। और मेरा मानना ये है अगर 1 से 2 बार जाना पड़ता है तो पेशेंट स्वास्थ्य नहीं है। नहीं सही नहीं, ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ सही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एक बार कहते हैं कि एक बार जो पेशेंट की पेट अच्छे से साफ हो जाए तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है, स्वास्थ्य रहता है। अब दिन में 5 बार 6 बार जा रहा है तो उसको बोलते हैं आंतों में सोजिश हो जाती है, जिसको बोलते हैं सिंगरैनी। सिंगरैनी के बहुत से नाम होते हैं, कोई इंग्लिश में कोलाइटिस भी बोलते हैं, हिंदी में आंतों में सोजिश बोल देते हैं, सिंगरैनी बोल देते हैं, इंटरटाइटिस बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। उसके कई कारण पेशेंट को बार बार जाने से घाव हो जाते हैं, टट्टी के रास्ते भी जख्म हो जाते हैं और अंदर भी जख्म हो जाते हैं। जो आंतों में सोजस के कारण ब्लीडिंग होती है वो आता है जमा जमा काला काला गंदा बदबूदार तारकोल जैसा ब्लड आता है। पेशेंट को ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बवासीर से खून आ रहा है या पेट से खून आ रहा है। उसके लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम देखते बता देते भी लक्षण ये होते हैं जैसे कि खाना खाते लैट्रिन का बार बार जाना, टट्टी पतली आएगी, टट्टी भी 12 प्रकार की होती है, एक किसी की जो लींड जो होती है पूरी लंबी आ जाए ऐसे तो वो बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? हाँ जी। ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं हैगे। उसको बोलते जी मल परीक्षण। मल का जो मल परीक्षण बोलते हैं, जैसे लंबी लैट्रिन आ रही है, टट्टी लंबी आ रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है जलेबी टाइम में तो बढ़िया है, खुल के आ रही है अच्छे से। अब किसी किसी की आती है थोड़ी सी टट्टी आई, उसके बाद फिर गए, फिर गैस बनी, फिर खड़े हो गया, फिर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर बैठ गया। और किसी को आती है डॉप 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 मतलब टूट टूट के निकल जाती है, किसी की आती है मतलब टुकड़े में आ जाती है, जैसे मिंगन आते हैं, थोड़े मिंगन टाइम में पड़ते रहेंगे। तो जो लैट्रिन का रंग होता है वो पीला होना चाहिए, डार्क पीला होना चाहिए, और जो मलद्वार टट्टी होती है मोटी होनी चाहिए, एक बार में आनी चाहिए, कट्टी हुई नहीं होनी चाहिए। वो जे कट्टी आंदी है तो की है तो आंतों में इन्फेक्शन है, पेट में कोई गड़बड़ है जिसके कारण पेट साफ नहीं हो पा रहा अच्छे से आपका। कई बार आंतों में सोजिश के कारण म्यूकस भी आता है जिससे कि लैट्रिन से जलन दर्द वगैरह बना रहता है, मिर्ची सी लगी रहती है पेशेंट को। और जो जलन एसिडिटी होती है ऊपर जाती है, इसोफेगस में जाती है यहाँ पे, तो यहाँ जलन करती है, टट्टी ग्रस्त जाती है नीचे जलन करती है। इसके अलावा फिर आ जाती है बवासीर। बवासीर में जो खून आता है पेशेंट को लाल आता है पानी जैसा, वो काला गंदा ब्लड नहीं आएगा। अच्छा हाँ, वो कैसे भी आ सकता है, किसी को बूंद बूंद करके आया, किसी को टप टप करके आया, किसी को धार बन के आया, किसी को टट्टी के साथ चिपक के आ जाता है। जो टट्टी के साथ चिपक के आता है ब्लड वो अंदर से आता है, जो धार बन के आता है वो गांठों से आता है, मौके से आता है। एक गल है भी जे ब्लड आंदा है तो ਉਹਦਾ मतलब यही है भी बवासीर ही है। देखो अगर साफ ब्लड आता है, टट्टी ग्रस्त से साफ ब्लड आता है, लाल डार्क ब्लड आता है तो बवासीर है। बवासीर के अलावा बहुत सारी बीमारी होती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बवासीर से ब्लीडिंग होती है, केवल टट्टी टाइट आने से जोर लगने से गुदा में जख्म हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, साइड चीरा लग जाता है गुदा में, जिसमें लग के जब उसमें आती है दर्द भी रहेगा, जलन भी रहेगा, खून भी आ जाएगा। किसी किसी को पेशेंट को ब्लीडिंग इतनी ऐसी हो जाती है जैसे मोरी खुलती है तो टप 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 धार बननी शुरू हो जाती है, जब तक इंसान खड़ा नहीं होता जब तक ब्लड पड़ता ही रहता है। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਗੱਲ ਚੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਵਾਲ। ਜੀ ਪੁੱਛੀਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੀਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ,
ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ कितना को नुकसानदायक हो सकता है? नुकसानदायक इसलिए है कि जो बैठते हैं मल द्वारा बैठते हैं, क्योंकि तो इंग्लिश सीट हो गई है, उसमें क्या इंसान का ध्यान ही नहीं रहता, उसकी टट्टी कैसे आ रही है, किस कैसी नहीं आ रही है, खून पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, कोई ध्यान नहीं है। पहले लोग खेत में गाँव में जाते थे, बाहर जाते थे, लोगों को पता ऐसे बैठ के देखते रहते थे भाई कैसी लैट्रिन आई, किसी खून हो जाता था भाई पता लग जाता भाई खून पड़ गया, इसका बवासीर हो गई, अब उसको पता ही नहीं लगता। वो तो कभी कभार हो गया भाई, लैट्रिन कर ली, खड़ा हो गया, जब फ्लैश मारेगा अरे ब्लड आ रहा है भाई, अब तो डॉक्टर राहुल के पास ही चलना चाहिए। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। देखो जो हकीकत हम वो बात बताएंगे ना, जिससे कि सरल भाषा में लोगों को पता लग जाए। अब मोबाइल का आपने पूछा, अब मोबाइल जब जो बंदा चलाएगा उसको दिमाग जो है ना सारा मोबाइल में ही रहेगा, मोबाइल ही रहेगा, उसको ध्यान ही नहीं है। और हमारे आरोग्य में लिखा गया है, इसकी दिशाएं भी बताई गई है, किस समय जैसे करना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए, ठीक है। और ये भी बताया गया है जब आप ऐसा करते हो तो उस चीज दिमाग में आपके कुछ नहीं होना चाहिए भाई, आपको बस ये केवल है कि आपको मल त्याग करना है। जहाँ हम बाथरूम में बैठे हैं, जहाँ ये टिक कर रहे हैं, कोई अच्छी जगह तो है नहीं, ठीक है, तो करो और उड़ जाओ, 2 मिनट से ज्यादा मत लगाओ। अब जोर लगाते रहोगे, नशे फुलाते रहोगे, प्रेशर पड़ेगा नहीं। एक तो इंग्लिश सीट पे बैठे हो, ऐसे ही बैठे हो, तुम मोरी खुल नहीं रही, जोर लगा नहीं रही। एक बार फिल्म देखेगा, एक बार इंस्टा रील देखेगा, फिर जोर लगाए, फिर इंस्टा रील देखेगा। आधा बड़ा घंटा ही चलता रहता। हाँ वही चलता रहेगा। हाँ फिर जोर लगा, जलन दर्द हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपना क्या है, छोटे मोटे वैद्य से, किसी हकीम से। आजकल लोग फ्री का ज्ञान भी तो बहुत बांटते हैं, सोशल मीडिया पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक का देख लो, कहीं में देखते हो कोई भी आचार्य, कोई भी कुछ भी बन के अपना वैद्य हकीम बन के कुछ भी दवाई बांटना शुरू कर देता है। एक मैं ना नहीं लेना चाहांगा, चलो ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 दिन पियो, बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो जी, अब मैं किसी के दो पर्सनली कमेंट नहीं करूंगा, फिर भी बताना चाहूँगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, रजिस्टर्ड डॉक्टर, पर ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने से लोग जागरूक नहीं होते, क्योंकि उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। मलद्वार के अंदर कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो रही है, कोई भी गांठ है, कोई सिस्ट हो गया है, मांस हार्ड हो गया है, अगर आप कहोगे दूध में नींबू पीने से अगर बवासीर ठीक होती तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े ट्रामा सेंटर खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी खुली है, तो वैसे ही ठीक हो जाते, तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब बवासीर इतना ठीक नहीं हो सकती। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ, बवासीर का इलाज सही टाइम पे नहीं होता, फिर वो कैंसर भी बन सकता है। मल द्वार के अंदर, मलाशय के अंदर बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं गुदा में। हमारे पास पेशेंट हजारों आते हैं, मेरे हॉस्पिटल लुधियाना में डेली पेशेंट 5 से 6 पेशेंट के कैंसर आते हैं। डेली पेशेंट को, कुछ पेशेंट को दर्द होता है, कुछ पेशेंट को दर्द नहीं होता कैंसर में, वो लास्ट स्टेज पे जाके पता लगता है पेशेंट को। वो हम एग्जामिनेशन इसलिए कर लेते हैं कि हमारे पास कोलोनोस्कोपी मशीन होती है, एक वो पोलैंड की मशीन है, उसमें हम टट्टी के रास्ते जो है कैमरा डाल के दूरबीन से देखते हैं इसमें कितनी बड़ी गांठें हैं, और पेशेंट को भी दिखाते हैं भाई देख तेरी ये प्रॉब्लम है, बवासीर के मौके हैं, या कोई टैग बनाओ, या कोई कई बार क्लिनिकली हम एग्जामिनेशन करते हैं ग्लव्स पहन के, तो हमें पता लग जाता है कि हार्डनेस कहाँ तक फैली है, कितनी मैलिग्नेंसी है, पत्थर जैसा होता है वो कैंसर जो होता है, उसमें दर्द ऐसा नहीं होता, किसी को दर्द होता है, किसी को गंदा गंदा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जी एक ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं। देखो जी, मैं बताना चाहूँगा, आयुर्वेद के अंदर क्षमता है बीमारी को जड़ से खत्म करने की, पर जो आयुर्वेद का ज्ञान बांट रहा है वो खुद आयुर्वेद डॉक्टर होना चाहिए, BMS डॉक्टर होना चाहिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, ठीक है, जो कि हमारी 5.5 साल की डिग्री होती है कंप्लीट। उसको पढ़ने के बाद ही नॉलेज होती है। अब आपने कहीं से सुनी सुनाई बातें बोल दी भाई ये दवाई खा लो, ऐसे खा लो, गलत हो जाता है,
कई बार पेशेंट को दवाएं खाने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पता होना चाहिए ना उसको प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट को बवासीर है, फिशर है, बगंदर है। अब यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारी ऐसी दवाइयां प्रचलित में है कि आप ये खा लो उससे ठीक कर देंगे, आपको 1 घंटे में ठीक कर देंगे। मैं वीडियो देखदा रिठे ते चले, रीठा खा लो जी, बिल्कुल खा लो, आंवला खा लो, वो विटामिन सी होता है आंवला में, एस्कोर्बिक एसिड होता है, हेमोस्टेट होता है, मांसपेशी ब्लड को रोकता है, हीलिंग भी पावर अच्छी करता है, विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। पर जो गांठ बन चुके हैं दवाई से डिजोल्व कैसे होगी? अभी ऐसे ही जो ट्रीटमेंट करते हैं कुछ डॉक्टर जो होते हैं कि आपको टिक्का लगा देंगे। मैंने एक भाई कुछ पेशेंट्स आते हैं, टिक्का बेसिकली क्या होता है जी, तेजाब होता है, वो कार्बोलिक एसिड, तेजाब, हाँ, बादाम के तेल का मिश्रण क्या होता है। आजकल क्या लोग यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, इंजेक्शन क्या भर के लगाने लगते हैं। पेशेंट की जांच नहीं करते, भाई खून कितना है पेशेंट में, हीमोग्लोबिन कितना है, पेशेंट को HIV है या नहीं है, काला पीलिया है या नहीं है, ठीक है, पेशेंट को लीवर में कोई दिक्कत है या नहीं है, खून आने का कारण क्या है। कई बार पेशेंट की प्लेटलेट डाउन होती है, खून कम होती है। मैं किसी पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, पर मेरे पास जैसे पेशेंट सानेवाल से आते हैं, गुरदासपुर से आते हैं, बरनाला से आते हैं, पटियाला से आते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट जांच नहीं करते कि बवासीर है, फिशर है, बगंदर है। उनका तो बस ये है भाई इंजेक्शन भरा, वो कोई रजिस्टर्ड इंजेक्शन नहीं होता, सरकार नहीं बनाती ऐसा कोई इंजेक्शन, भरा और टट्टी के रस्ते लगा दिया गांठों में, सही लग गया तो ठीक हो गया मस्से, अगर थोड़ा बहुत गलत लग गया तो हालत खराब, 2 महीने 3 महीने बेड पे लेटे रहो। जख्म बन जाता है, तेजाब तो जलाएगा तो गुदा में हार्ड कर देगा, पानी निकलने शुरू हो जाएगा, जख्म बन जाएंगे, गड्ढे गड्ढे गहरे हो जाएंगे। और वो तो इलाज करने के बाद ना कोई टेटनस का इंजेक्शन देते पेशेंट को, ना कोई एंटीबायोटिक देते, ना उनकी लेटर पैड होती, क्योंकि डॉक्टर नहीं होते वही जोड़ा छाप डॉक्टर होते हैं। हाँ, वो लगा देते हैं 2-3 हज़ार में। लोग भोले भाले लोग हैं, कुछ चले जाते हैं, मान लो 1000 पेशेंट गए, 1000 पेशेंट में मान लो मुश्किल से 25 पेशेंट ठीक हो गए या 50 पेशेंट ठीक हो गए, 950 खराब हो गए, तो कितना गंदा रेशियो है। एक ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਪੂੜੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂ 2 ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਬਿਲकुल सही हो जाएगा। देखो ये लोगों में बहुत गलत धारणा है, ऐसा कोई नहीं है कि चलो मानते हैं पुराने समय में होता होगा, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराते हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे गालब्लैडर में स्टोन हो गया था 8 mm का, तो मैंने खुद एक हॉस्पिटल में जाके अपना ऑपरेट कराया। वो किस लिए कराया, क्योंकि मुझे पता था जो थैली है वो बंद हो रखी है, उसके अंदर स्टोन बन गया है, पत्थर बन गया है। जब तो कोई थैली नहीं निकलेगी, थैली को ओपन करके नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेगा, उसको रास्ता ही नहीं निकलने का। तो ऐसे गुदा के अंदर जो मांस बन चुका है, दवाई से घुलता नहीं है, उसका या तो ऑपरेशन कराते थे लोग, पुराने समय से जो चला आ रहा है, अंग्रेजी दवाइयों से ऑपरेशन करते थे। ऑपरेशन में क्या होता है, जो मांस होता है उसको काट के निकाल देते हैं, ठीक है, काट के निकालेंगे, जैसे मांस है तो जख्म बनेगा। कई बार जख्म में क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है तो टाँके भी लगाने पड़ते हैं। अब टट्टी को तो अपनी जगह से निकलना है, जो उसमें लग के आएगी तो जख्म में दर्द भी रहेगा, घाव भी बनेगा, मुआदी बन जाएगी, 2 महीने 3 महीने ठीक होने में लग जाते हैं, ठीक है। और किसी को तो स्पिंटर कट जाता है, लैट्रिन निकलती रहती है, कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, जिंदगी भर थैली लगा के घूमे जाओ अपना, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो है पुराना मेथड है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैं सर आपसे यही कहना चाहूँगा, क्या आप पुराने समय में कोई मोबाइल यूज़ करते थे, क्या आज के समय में करते हो? नहीं। पुराने समय में लोग रेडियो यूज़ करते थे, क्या आज के समय में करते हैं? नहीं। कोई ब्लैक एंड टीवी देखते थे, आज के समय में महाभारत रामायण देखते थे उसमें बैठ के, आज के टाइम में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? रीजन है कि समय के साथ अपडेट हो गए इन लोग, आजकल यूट्यूब देख रहे हैं। जो पुराने समय में लोग जो डॉक्टर होते थे, इंस्ट्रूमेंट को होते थे या कोई इंजेक्शन रखते थे, वो गर्म पानी में भिगो के दूसरे को लगा देते थे करके, पर आज के टाइम में नहीं है। आजकल तो फॉर्मल चैम्बर में, सिडेक्स लोशन में, ऑटोक्लेव में करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो पुराने मेथड से जो चलता आ रहा है, उसकी जगह लेटेस्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, उनको हम यूज़ करते हैं। उसको करने से ये होता है पेशेंट को, एक तो पेन नहीं होता,
ठीक है। और हम इस चीज़ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेते रहते हैं, समय के साथ डॉक्टर को अपडेट रहना पड़ता है। मेरा मोटिव ये रहता है कि मेरे पेशेंट को तकलीफ ना हो, जो उसने पहले कराया जो कराया हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद तकलीफ ना हो उसको। जैसे लेजर ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट है पूरे वर्ल्ड में क्या जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसमें एक तो पेशेंट को ब्लड लेस ट्रीटमेंट रहता है, दर्द नहीं होता, घाव ना बराबर बनता है। हाँ ना बराबर, एक होता है इतना लंबा जख्म हो जाता है, एक होता है ना बराबर सूखा, वो भी हफ्ते भर में सूख जाता है। पेशेंट को डे केयर ट्रीटमेंट होता है, डे केयर प्रोसीजर होता है। पेशेंट को 24 घंटे के लिए हम एडमिट नहीं करते, कोई रीढ़ गड्डी में टिक्का नहीं लगाते, कोई जनरल बेहोश नहीं करते, कोई दर्द नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, आसानी से इलाज करा के जा सकता है बिल्कुल। एक फिर ऐसे हमारा जर्मन मशीन से होता है IRC, आप यूट्यूब पे सर्च करें, इंफ्रारेड कोंगुलेशन, सेकंड ग्रेड ये पाइल्स मास्क के, उसमें तो इंजेक्शन भी देना नहीं होता, सुनकर जरूरत नहीं होती गोदाम में भी। प्रोटोस्कोप के जरिए लाइट पड़ेगी, मस्सा वहीं के वहीं सूख के खत्म हो जाएंगे। ऐसी ठंडी मशीन है जो -196 डिग्री पे जो मांस होता है उसको हम फ्रिज कर देते, जमा देते बर्फ की तरह। जमने के बाद ये जो मस्सा है 2 या 3 दिन में ब्लैक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मांस सूख के झड़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो समय के साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम वो यूज करते हैं। इस चीज के लिए जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडिया की बात की जाए या वर्ल्ड की बात की, तो मैं खुद कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता हूँ ताकि अपना समय दे के लोगों का मैं समय बचा सकूं और अच्छा समय पर अच्छा ट्रीटमेंट दे पाए। मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਹਫਤਾ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ नहीं रहेगी। समय पे इलाज करा लोगे तो ठीक हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ जनता के सामने कि दवाई लेने के लिए मेरे पास पेशेंट बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि मेरा वो आदत नहीं है कि पैसा ले लूँ दवाई दे दूँ, क्योंकि मुझे पता है दवाई से ये पेशेंट ठीक होंगे नहीं है। कि एक तो पेशेंट की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग ज़रूरी होती है, पेशेंट को ज्ञान देना पड़ता हमें। आजकल तो पेशेंट खुद ही इतने नॉलेज हो जाती है, जगह जगह डॉक्टर घूमने के बाद, जी मैं वहाँ से दवाई लेकर आया था, जी मैं वहाँ से पुड़िया लेकर आया था, जी मैंने वहाँ धागा बंधवा लिया, जी मेरे साथ ऐसा हो गया, जी ऐसा। वो नहीं है, हमारा तो परमानेंट इलाज होता है और गारंटी हम लिख कर देते हैं। मेरे सामने गारंटी मैं लिख के देता हूँ, दोबारा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪਾਇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो तो देखो जी ऑपरेशन में होना ही होना है, 2 महीने बाद 3 महीने दोबारा होनी ही होनी है और उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया, जो मांस बना तो उसने हटा दिया, जख्म को सुखा दिया। पर पेशेंट को खाने पीने से वास तो नहीं आएंगे। अगले दिन उनको भाई लगता है अभी मैं ठीक हो गया हूँ, महीने बाद 1.5 महीने बाद बर्गर मोमोज ड्रिंक नॉन वेज सब खाना शुरू कर देंगे और ये पेट की गर्मी के कारण ही प्रॉब्लम बनती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने इलाज करा लिया उसके बाद अपना संयम बनाओ, दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए व्यायाम करो, खाना अच्छा खाओ, हल्का खाना खाओ जी। ਮੋਮੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੋਮੋਸ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੋਮੋਸ ਦੇ ਬਹੁਤ دیਵਾਨੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੋਮੋਸ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੋਮੋਸ ਦੇ ਨਾਲ। मोमोज की तुसी गल की तो मोमोस नाल भी खाने नाल बिल्कुल। मोमोज होता क्या है, मैदा होता है, अब जीभ का स्वाद है जी। आप लाल मिर्च ले रहे हो, आप जीभ लगा रहे हो, आपको टेस्ट ला रहा है, नमक मिर्च को लाल मिर्च का रहा है, आपको लग रहा है बहुत टेस्टी, ठीक है। पर वही अंदर जाके जलन कर रहा है, टट्टी से जलन दर्द कर रहा है और रातों में मैदा जो चिपकता है वो, जो कि नुकसानदायक है। आज से पहले आपने सुना है 20 साल पहले 25 साल पहले मोमोज वगैरह है, ये चीजें नहीं होती थी। मुश्किल से एक चीज हो गया, अभी समोसा वगैरह हो जाता था, गोलगप्पे वगैरह के लोग शौकीन होते थे, वो तो हमने भी देखा है बचपन में। पर आज के समय तो देखो नई नई चीजें आ गई हैं, बर्गर चाउमीन मतलब एक से एक चीजें आ गई हैं। अगर लोग घर का खाना कम खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं जी। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 버ਗਰ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ नहीं, भी मील्स खाओ, एक बर्गर आ गया, एक फ्राइज आ गई, नाल कोल्ड ड्रिंक आ गया, चलो जी पियो। देखो जी आज के टाइम में देखो, स्कूल टाइम में जो बच्चे हैं आज के टाइम में, पहले जो माताएं थी खाना वाना बना के भेजती थी बच्चे को, भाई खाना बना के नाश्ता भी करके जाते थे घर से। और तुलसी के पत्ते
दबा के जाते बच्चा स्वस्थ रहे। पैदल जाना होता था, गाड़ी बाइक पे कहाँ जाते थे बच्चे पुराने समय में, बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाते थे, इतना ही आना होता था। उसके बाद खाना भी घर का ही लेके जाते थे मोस्टली। आज के टाइम में क्या करते हैं पेरेंट्स भी, क्या करते हैं ध्यान नहीं देते बच्चों की तरफ, पैसे दे देते हैं भाई अपना कैंटीन से खा लियो। ये भी गलत है, गलत चीज है, नुकसानदायक है ना। कैंटीन से, कैंटीन में क्या खाएगा, वहाँ खाना थोड़ा मिलेगा आपको, वहाँ पे वही मिलेगा आपको, बर्गर है, चाउमीन है, कोल्ड ड्रिंक है, पैटीज है, तो नुकसान करेगी चीजें ये। ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। बेकरी प्रोडक्ट्स भी की नुकसानदायी है? देखो जी, नुकसानदायक चीजें वो हैं जो हमारे शरीर को माफिक नहीं आती। कई चीजें ऐसी होती हैं, अब कुछ लोग पेशेंट जो होते हैं, किसी को खीरा खाते हैं, खीरा माफिक नहीं आता, किसी को नींबू रिएक्शन करता है, फायदेमंद है, पर जो हमारे शरीर को फायदेमंद करती है वो चीजें वो अलग पता लग जाती है, और जो नुकसान करती है हमें खुद ही महसूस हो जाता है। फायदेमंद, मैं एक गल पूछूंगा, आजकल बड़ा ट्रेंड चलता रोटी ना खाओ जी, रोटी ना खाओ। क्यों? ਤੁਸੀਂ weight ਘਟਾਣਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखो जी, मुझे लगता है अगर कोई ऐसा प्रचार कर रहा है तो अपने वो रोगी बढ़ा रहा है, रोगी बढ़ा रहा है। क्योंकि ऐसा अगर पुराने समय में ब्रेड भी नहीं थे, मक्खन वगैरह यूज नहीं होता था, पुराने समय में लोग रोटी तो खाते थे। रोटी होगी, घर का मक्का हो गया, सरसों का साग हो गया, लस्सी हो गई, घी मक्खन, ये खाते थे और वो फिट रहते थे। उनकी उम्र देखो, आज भी कुछ लोग जो है 90 95 100 साल के भी देते हैं। और आज का रेशियो देखो, बर्गर खाने वालों का और जो रोटी ना खाने वालों का 50 55 60 से ऊपर जा ही नहीं रहे। लोगों को अटैक खूब पड़ रहे हैं, खूब बीमार हो रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कैंसर बन रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी के टट्टिगर से कैंसर बन रहा है, किसी का आंखों की रोशनी कमजोरी है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये खाना पीना अच्छा नहीं है लोगों का। ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਸਾਗ ਹੀ ਨਾ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ ਸਾਗ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ भी पंजाब की सब तो फेमस डिश जे कोई है मक्की की रोटी ते सरसों दा साग। बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। जो साग होता है उसमें आयरन होता है, आयरन फोलिक एसिड खून को बढ़ावा देता है, खून बढ़ता है उससे। मक्के की रोटी भी अच्छी रहती है, ठंड से बताती है क्योंकि गर्म उसका तासीर गर्म होता है, तो पेट वो वैसे भी ठीक रहती है। पर उन लोगों को खाना चाहिए जिनको पाइल्स नहीं है, ठीक है, जिन्होंने पाइल्स नहीं है, जो स्वस्थ है, बढ़िया है, ठीक है। जैसे कि ये मुझे गॉलब्लैडर स्टोन निकला हुआ है, मुझे अगर मैं खाऊंगा तो मुझे नुकसान करेगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं हल्का खाना खाता हूँ। एक मैं भी चीज़ बड़ी देखी है लोगों कईयां ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ कर सकते हैं। देखो, उन्होंने अपनी आदत बना ली, ठीक है। अब जैसे कि पेशेंट जो होते हैं, कुछ पेशेंट का ये मानना है जैसे कि सुबह बैठ के उखड़ो बैठ के गर्म पानी पीते हैं, सिर्फ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, उससे उनका पेट साफ हो जाता है। अब उन्होंने जो भाई आदत बना ली कि स्मोकिंग करने से मेरा पेट में जाता है, स्मोकिंग करके ही पेट साफ करना है, तो उनकी हैबिट बन जाती है। तो जैसे शरीर को डालोगे आप, उसी उसमें चल पड़ता है जी। एक मैं पूछना सीगा भी तुसी गल कर रहे सी भी वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए आजकल, ते फिर वधिया वही सी जो इंडियन सीगा? इंडिया तो सबसे बढ़िया था, क्योंकि अगर जो आप इंग्लिश टॉयलेट में बैठे हो तो जो आपका जो मलद्वार का रास्ता है, जो टट्टी का रास्ता है, पूरी तरह से खुलेगा ही नहीं, आपका फ्लैक्ट नहीं हो पाएगा। अब ऐसे बैठोगे, उखड़ो बैठोगे तो गुदा का प्रेशर, जो बॉडी का प्रेशर गुदा पे बनेगा, प्रेशर बने तो ऑटोमेटिकली खुलेगा तो जो अंदर है वो सारा निकल जाएगा बाहर। मतलब घरां दे विच अजकल ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ टॉयलेट्स ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, बुलाया जा रहा है बीमारी, बिल्कुल बुलाया जा रहा है। आपने 20-25 साल पहले कोई बीमारी देखो, शुगर की देखो, हार्ट की देखो, बवासीर की देखो, बालों के उठने लगे, जवान बच्चों सफेद बाल, बहुत सारी बीमारियां आई है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ा है, पोल्यूशन के साथ लोगों ने प्रोग्रेस की है, नई जनरेशन बड़ी आ गई, तो उससे बीमारी भी तो आई है शरीर में। टॉयलेट सीट साड़ी बदलन करके कितनी बीमारियां का फर्क पे? देखो जी, मैं बता देता हूँ, जैसे इंडियन सीट पे बैठने से जो हमारा ये बड़क जो है वो टच नहीं होता था। हाँ, सब तो बड़ी गल है। सुनो, अब इंग्लिश सीट्स है,
सीट है जो उस पर हम खड़े हो गए, एक तो पहले तो पेशाब करते हैं, बैठ कर हम पेशाब तो करते ही नहीं, बिल्कुल खड़े होकर पेशाब करेंगे तो उसकी बूंद ना 1 या 2 बूंद तो बिल्कुल पड़ेगी पड़ेगी गिरेगी। अगर हम तो डॉक्टर हैं, हमें तो पता है इससे भगंदर बन जाएगा, पर जनता को तो नहीं पता ना, पब्लिक को तो नहीं पता। कई लोग बैठ जाते हैं, पेशाब के ऊपर बैठोगे, किसी के पेशाब के बूंद में बैठोगे तो बीमारी तो फैलेगी। पेशाब तो गंदी है ना। उसमें क्या होता है, हम तो देखो पानी डाल के बैठते हैं, साफ करके होते हैं। मैं अपने टॉयलेट की पर्सनली बेसिस शेयर नहीं करता कभी भी। कई बार जैसे कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कहीं एयरपोर्ट है या कई पब्लिक टॉयलेट है, वहां पे तो ही नहीं है, वहां पे तो कई बार पानी की सुविधा नहीं होती। टिश्यू पेपर तो बहुत चीज हाँ रखे होते हैं, वो भी इन्फेक्शन फैलते हैं, डस्टबिन होता है, बदबू होता है। और उससे क्या, जब पेशाब की जो बूंद लगी रह जाती है, केवल सूख जाती है, उस पर बैठने से एक बीमारी बनती है जो कि बहुत भयंकर खतरनाक है, जिसको बोलते हैं भगंदर। भगंदर होता है टट्टी के रास्ते बाहर फुंसी का बन जाना, वो मुंह बनेगा, मुंह बन के पी भी निकलेगी चिपचिपा पानी सा, उसमें से निकलता है रेशा निकलता, आदमी को लगता है भाई ले तो छोटा मोटा बाल तोड़ हो गया। वैसे ही पुराने टाइम में लोग बोल देते थे अब ठीक हो जाएगा, छोटी मोटी एंटीबायोटिक ले ली, कोई भी अमोक्सिलिन वगैरह कुछ भी ले ली, आराम मिल गया। कुछ दिन बाद फिर मुंह बनेगा, मुंह बन के पानी से फीवर मुंह फिर आएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर किसी छोटे मोटे वैद्य हकीम से या ऑनलाइन दवाई मंगा के खा लेगा, चल भाई ठीक है, 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हो गए। बीमारी वो अंदर अंदर फैलती रहती है, पौधे की जड़ की तरह फैलती रहती है। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें क्या ऑपरेशन कर देते हैं, चीरा लगा दिया भाई, बाहर से फोड़ा बन गया, चीरा लगा दिया, मुआद निकाल दी। मुआद निकालने से तो सुराख अंदर का, और ट्रैक थोड़ा भरा। वो मेन चीज होता है कि उसको अंदर से भरना चाहिए ट्रैक जी। मतलब गल है भी इस जमाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इंडियन टॉयलेट ਨੂੰ यूज कर रहे हैं असल 'ਚ ਉਹ एडवांस है, बिल्कुल एडवांस है। अब आप देख लो, आज मैंने जैसे जीन्स पहनी है अभी, पुराने टाइम में जैसे पहले कई 15 साल 20 साल पहले लोग क्या ना खुली जीन्स पहनते थे भाई, रिलैक्स रहे। हाँ। फिर फैशन आया कि टाइट जीन्स पहननी शुरू कर दी लोगों ने, फिट रहे, फिट दिखे बॉडी, अब बड़ी टाइट जीन्स पेंसिल, अब फिर से वही आ गया खुले। आप देखो खुले खुले कपड़े पहनते कि रिलैक्स रहना चाहिए, है ना। क्यों, टाइट जीन्स वगैरह पहनने से पसीना आता है, पसीना आने से जो ये बीमारी होती है, भगंदर जैसी बीमारी है या इन्फेक्शन फैलता है या स्किन जो प्रॉब्लम होती है, ये आती है। जीन्स पहनने वाली भी आती है, टाइट जीन्स पहनना बिल्कुल आएगी जी। आप देखो जगह लगातार आप टाइट जीन्स पहन के एक जगह बैठे रहो, पसीना आ जाएगा, पसीना क्या करेगा, इन्फेक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, गर्मी में 2 बार 3 बार फेस वॉश कर लिया अपना, तो यहाँ से बात थोड़ा करते 2-3 बार, यहाँ पे तो गुदा में टट्टी के रस्ते बैक्टीरिया निकलते रहते हैं 24 आवर। मतलब सफाई रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। सवेरे बस नहा लिया तो गल खत्म। अब गर्मी में आप 2 बार नहा लेते हो, 3 बार नहा लेते हो, कपड़े 2 बार 3 बार चेंज कर लेते हो। अब निक्कर जो अंडरवियर है, जो कच्चा जो एक ही पैर पहन लिया सुबह रोज शाम तक पहने ही रखा, उसमें साला बैक्टीरिया निकल रहे हैं, बदबू निकल रही है, 2-3 बार आप जा रहे हो, इंग्लिश सीट पे बैठ रहे हो, दुनिया का पेशाब इन्फेक्शन लग के आ रहा है, बहुत सी चीजें उसमें। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ है, फिर इतना ही करना चाहिए। देखो नहाने से क्या होता है, साफ रहता है। नहाने के बाद ही मेरा एक चीज़ ये होता है कि आप अंडरवियर चेंज करो, अंडरवियर चेंज करने के बाद तो टावल होता है, साफ टावल बिल्कुल हो सूती, उससे पूछो हर एक अंग को, उसके बाद ही पहनो। कई बार क्या तो नहाने के बाद ही गिला है, उसमें अंडरवियर पहन लिया। कई लोग ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਾਈ नहीं सही तरीके से। देखो ड्राई करना बहुत जरूरी है ना, अगर आप सफाई नहीं करोगे तो गीले कपड़े हो जाएंगे, गीले में बैठोगे। अब जैसे बरसात में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आपकी जीन्स भीग जाए, अगर आपने ऊपर चेंज कर लिया, जीन्स चेंज नहीं करी या कपड़े चेंज नहीं करे, नीचे का पोर्शन नहीं करा, उससे क्या होगा, खाज खुजली जैसी बीमारी आ जाएगी, ठीक है, जांग लग जाएगी, बोले जांग लग गई भाई, फिर घूमो डॉक्टर के पास, स्किन के डॉक्टर। इससे पहले अपना सावधानी बरतो कि आपको प्रॉब्लम आए ना। एक मैंने ये भी गल दसो भी जेट स्प्रे वर्सेस टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, मैं टिश्यू पेपर कहता है, जेट स्प्रे वर्सेस टॉयलेट पेपर की यूज करना चाहिए। देखो जी, मैं नहीं कहूँगा जी जेट स्प्रे यूज करो या टिश्यू पेपर यूज करो,
मैं तो कहता हूँ इंडियन सीट के साथ अपना जो डब्बा होता है ना, डब्बा use डब्बे में पानी भर के उससे हाथ धो, सबसे बढ़िया है वो, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ सबसे बढ़िया। ਕਿ ਜੈਟ ਸਪਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नुकसान ये है जी, जब प्रेशर आएगा उस पे, जब मान लो स्पीड आएगी, स्पीड से क्या होगा, टट्टी के रस्ते जो है जख्म हो जाएंगे। जख्म होने के बाद आज जख्म होकर फिर यूज करें, फिर उसमें दर्द होगा, जलन होगा। तो इससे अच्छा पहले काम ये करो ना कि फिशर बीम बनने ना पाए। अपने डब्बे से पानी से ही होता, अपने तरीके से हाथ धो सकते हो भी, आपको लगे जहाँ जहाँ साफ है वहाँ अच्छे से कर सकते हो बढ़िया से। वो जेट जो होता है वो थोड़ा यूज करता है हाथ, तो जब भी आपने यूज करना है जेट पकड़ने के लिए, इससे अच्छा तो डायरेक्ट ही अच्छे से अपना हाथ साफ करो। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। वही तो, खुद वो लोग मोस्टली जो हैं फॉरेन में लोग हैं, इंडियन सीट यूज कर रहे हैं। अच्छा, और हमारे फॉरेनर ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ इंडियन सूट करने लगे, उन्होंने हमारा कल्चर अपनाया है। और हम लोगों ने क्या सोचा भाई, जैसे कि पेस्ट यूज करना शुरू कर दिया, नीम जो दातुन करते थे कितना अच्छा होता था, है ना। कीटनाशक जो नीम यूज करते थे, जो गन्ने का रस पीते थे, गन्ना जूस गन्ना लेते थे, वो कितना अच्छा रहता था। गन्ने चूसने से भी हमारे दांत इतने मजबूत रहते थे बहुत ज़्यादा। अब लोग बच्चे यूज करते ही नहीं है, वो अपना वैसे जूस भी नहीं पीते मोस्टली। सर्दी मौसम में गन्ने का जूस वगैरह पीना बहुत अच्छा रहता है जी। ਚੂਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਬਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਚੂਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੂਰਨ ਖਾ ਲਓ। ਜੇ ਚੂਰਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ त्रिफला खा लो। चूरन लाहेबंद है क्या? देखो जी, चूर्ण के अंदर मिलाया क्या गया है, पहली बात तो वो है, कुछ ऐसे लोग भी हैं आयुर्वेद के नाम पे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, पर जो प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद दवाइयाँ बहुत कारीगर हैं। अगर उसका सही समय पे सही विद्वान डॉक्टर द्वारा उसका यूज कराया जाए, रोगी को परीक्षण करने के बाद नाड़ी परीक्षण करके किया जाए या मल परीक्षण करके किया जाए, देखा जाता है कि आप दवाई क्या खाते हैं, किस रूप में ली जाता है। अब इस वगोली भूसी ले लो, आप खुद ही एक्सरसाइज कर लो, पपीता ले लो। इंसान को पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे खाने से मुझे ये फ़ायदा है, ये हो जाएगा। आजकल लोग ऐसे विज्ञापन भी आते हैं जी, आप ऐसा करो ऐसे ठीक हो जाओगे, ये हो जाएगा। घर का नुस्खा ले लो, घर में आपके सब कुछ हैगा, आपके अंदर ये है, जीरा भून के खा लो। बहुत सी फेक ऐड आती है। हाँ, जीरा तो ऐ बनाता ना, जीरा बना दिया, हल्दी बना, तो कुछ भी बना दिया एक्सपर्ट, पर मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। क्योंकि लास्ट में लोग क्या कहता है, अपनी दुकान चलानी होती है, लास्ट में ये बोलना होता है जी आप अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुझसे ले लो। वही चीज़ 100 रुपये की चीज़ आपको 1000 रुपये में, 1500 या 2000 में दी जाती है। अब वो क्या है, जब चीज़ आ जाती है लोग कुछ दिन तो उसको यूज़ करते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर 3 दिन में कोई अलग प्रोडक्ट आ जाता है जी आप इससे आराम नहीं मिला तो ये ले लो आप। समझे नहीं समझे? तो सबसे बढ़िया है कि आप उठते ही गुनगुना पानी पियो, 2 गिलास 3 गिलास पानी पियो, जितना आप पी सकते हो, कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना। उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर घूमो पैदल। मैं नहीं कहता कि प्रदूषण हो रहा है कि बाहर घूम के आओ, नहीं, अपना छत पे टेरेस पे घूमो। घूमने के बाद अपना अच्छे से बढ़िया, जब आपका प्रेशर बढ़िया हो जाए, बढ़िया से पेट साफ करो। पेट साफ के बाद अगर आपको पीने की इच्छा है, ग्रीन टी वगैरह जो पीना चाहो, ग्रीन टी वगैरह पी लो अपना, ठीक है। मुझको प्रचार नहीं करा ग्रीन टी का, भाई आप पी लो, या खुद भी बना सकते हो अपने घर में ही। जैसे 1 कप गुनगुना पानी ले लो, उसमें हल्का सा शहद डाल के, नींबू वगैरह डाल के, थोड़ा उसमें तुलसी डाल लो अपना, ठीक है। अगर भाई आपको जुकाम वगैरह है, जैसे मुझे भी हो रखा है, उसमें थोड़ा बहुत अपना इलायची डाल लो, उसमें थोड़ा बहुत अदरक डाल लो, उससे बढ़िया रहेगा। पेट भी साफ रहेगा, आपका वेट भी कम होगा, चेहरे पे ग्लो भी आएगी, आपको भूख भी लगेगी, आप बिल्कुल फिट रहेंगे जी। एक गोरियां ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਬੈੱਡ ਟੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੈੱਡ ਟੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ कोई नन्हे पेट ही चाह पी लेंदे आ, निर्णय कालजे ही जड़ा है चाह पी लेंदे ने। देखो जी, सुबह उठते ही पूरी रात का क्या लीवर का काम होता है डिटॉक्स करना। आप लेते हैं सुबह उठते पहले तो पानी लेना चाहिए आपको, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी भी नहीं, निवाया पानी पियो। उसके बाद अगर आपको चाय वगैरह पीना है तो पी लो। अगर मेरे मानने से ब्लैक टी पी दीजिए, पी जाए सबसे बढ़िया है, ठीक है। ब्लैक टी लोगों को आदत होगी दूध को चाय पीनी, ब्लैक टी पीना सबसे बढ़िया रहता है, ब्लैक टी पीनी चाहिए। ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी आजकल बाजार में बहुत सारी मिल जाती है, कोई भी अच्छी कंपनी से मंगवा के ले लो, या अपना खुद ही ले लो तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि मेरा मानना है कि खुद अपने आँखों हाथ बनाई हुई चीज़ों पर हम विश्वास कर सकते हैं। बाहर से मार्केट में कैसी मिलेगी कैसी नहीं मिलेगी वो हमें नहीं मालूम। क्योंकि लोगों ने आजकल बोले ये ऐसे चाय पियो, ये करो, लास्ट में बोलते हैं जी आप ही ले लो जी, हमारी खुद की टी है जी, 1500 के 2000 के बेच देते हैं। वो सेल्स मैन से, डॉक्टर सेल्स मैन से। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸਲ ਸੇਲਸਮੈਨ ਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਲਓ ਆ ਨੁਸਖਾ,
जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं बनता लो ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। अब लोगों को देखो आज के समय में पैसा है, समय नहीं है। आदमी सोचता है देखो जी इस करने से ये फायदा हो जाएगा, इस करने से ये हो जाएगा, तो इंसान सोचता है चलो यार 1000 1500 2000 में क्या फर्क पड़ा, मंगवा लेते हैं, खा लेते हैं। खाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, फिर इतने में दूसरे डॉक्टर की ऐड देखते चलो उससे मंगवा लेते हैं। ऐसे लोगों में बर्मनती है। घर में सब कुछ है तो अपने घर का यूज करो, अपने घर का खाना खाओ, सादा खाना खाओ, पानी पियो, बच्चों में ध्यान रखो, हो सके जितना व्यायाम करो। ये बहुत सी चीजें हैं। कहते हैं जी आजकल देखो हवा भी जो है बिकने लग गई, जैसे अब ऑक्सीजन प्रदूषण हो गया है, लोग ऑक्सीजन वगैरह लगा रहे हैं, ये लगा रहे हो, ठीक है, हवा भी बिकती भी बिल्कुल। पानी देख लो, पानी है, ਉਹ हवा है, ਉਹ ਬੜਾ और डिटॉक्स वाटर। ਡਿਟੌਕਸ ਵਾਟਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ब्लैक वाटर। ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ। देखो जी मेरी बात सुनो, सबसे पानी बढ़िया होता है पानी घड़े का पानी, सब तो बढ़िया। जिंक भी होता है उसमें, पोटेशियम भी होता है, वो सबसे बढ़िया होता है। अपने एक मटका लाओ, पानी रखो, उसमें गर्मी है तो उस पर कपड़ा लगा के रखो, उसमें एकदम ठंडा पानी है तो वो पियो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। उसमें घड़े की जो खुशबू होती है बढ़िया रहती है, ठीक है। दूसरा, सर्दी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पीतल की जो होती है घड़ा होता है उसमें भी आप पानी उसका यूज़ कर सकते हो, बढ़िया रहता है, उसमें निवाया पानी रहता है हमेशा। जैसे कि चांदी के जो गिलास होते हैं, लोग उसमें पहले पुराने टाइम में पानी पीते थे, हमने खुद पिया है उसमें। तांबे की लुटिया में पानी सबसे अच्छा माना गया है। शाम की तांबे की लुटिया में पानी भिगो के रख दो, सुबह ले लो। घर में जो किशमिश होती है, आप लोग क्या बोलते हो पंजाब में किशमिश? सौगी। हाँ सौगी, जितनी एक मुट्ठी में आप उसको भिगो के रख दें गिलास में, सुबह उठ के आप खा लो, लीवर भी ठीक रहेगा। सौगी को हम बोलते हैं उसको क्या नाम अपना, किशमिश बोलते हैं, और द्राक्ष बोलते हैं आयुर्वेद में, द्राक्ष किशमिश को, द्राक्ष। हाँ जी। उसे एक तो लीवर के लिए सबसे फायदेमंद है, और पेट ऑटोमेटिकली आपको 100%, सनीसा मैं आपको कहता हूँ एक बार आप करके, कोई भी करके देखो, आपको रिजल्ट दूसरे तीसरे दिन आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। आपको किसी प्रकार की कोई चूर्ण दवाई, कोई दवाई खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। बस पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਗੀ ਪਾ ਦਿਓ ਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪੀ ਲਓ। पियो नहीं, वो जब फूल जाएगी तो उसको खा लो, ਸੌਗੀ ਨੂੰ हाँ जी खा लो। उससे एक तो जो आपको कफ, पित्त, वात, 3 दोष होते हैं बॉडी में, ठीक है, त्रिदोष, ये बिल्कुल सामान्य अवस्था में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बढ़ना भी गलत है, घटना भी गलत है। आपका भूख अच्छा लगेगा, ठीक है, मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहेगा, ठीक है, नींद अच्छी आएगी, पेट साफ रहेगा, आप पूरे दिन आपका ऊर्जा भरी रहेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी आपके में जी। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ आयुर्वेद ਦੀ कितनी? देखो आयुर्वेद किस लिए है जी, आयुर्वेद के अंदर भी डॉक्टर होते हैं। मैं डॉक्टर राहुल गुदा रोग विशेषज्ञ हूँ, और मैंने BAMS किया है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, ठीक है, और मैं इस चीज़ का स्पेशलाइजेशन हूँ। तो हमें भले ही मैं पाइल्स फिस्टुला फिशर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, पर हमने किताबें तो सारी पढ़ी है ना जी। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਉਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ? वो क्षार सूत्र के बारे में। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? क्षार सूत्र एक मेडिकेट थ्रेड होता है जो 5000 पुरानी हमारी जो पैथी आयुर्वेद बहुत पुरानी है। मानना तो ये है कि जो आयुर्वेद, आयु जमा वेद, जो आयु को जीने का जो वेद होता है वो आयुर्वेदिक होता है, ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इसमें क्या होता है, बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम किया जाता है। एक उसमें आपने बुक पढ़ी होगी, डॉक्टर एम शाहू हैं जो हमारे हैं, उनके मैंने अंडर काम किया है गाइड्स में, तो उसमें पाइल्स फिस्टुला फिशर के बारे में बताया गया है। उसमें क्षार सूत्र चिकित्सा होती है। क्षार एक दवाई का नाम होता है, जिसमें हल्दी, अपरमार क्षार, स्नीव क्षीर वगैरह चीज़ें होती हैं जो पेड़ पौधे से हम निकालते हैं। उसके बाद जो एक सूत्र मैंने धागा बोल देते हैं, ठीक है, उस धागे के ऊपर हम 21 दिन के अंदर अलग अलग तरह की बसमें लगाते हैं, लेप लगाते हैं। उसके बाद जो पाइल्स मांस बन जाता है ना, गांठें बन जाती है, तो उसके अंदर जड़ों में बांधने के लिए वो क्षार सूत्र यूज किया जाता है, जिससे कि 5 से 7 दिन अंदर वो मस्सों को सुखा के निकाल देता है। उसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट इसलिए रहता है क्योंकि उसमें पेस्ट लगी होती है आयुर्वेद की बहुत सारे, क्योंकि उसमें काटने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली सुखा के खत्म करता है। क्षार भी कई तरह के होते हैं,
जैसे केले का भी क्षार होता है, मूली का क्षार होता है, वो एक क्लाइन होता है, उसमें देखा जाता है कि इसका पीएच लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो तैयार किया जाता है। ये जो क्षार सूत्र होते हैं बड़े बड़े, जो आयुर्वेदिक है, BHU जैसे हैं, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में यूज़ किया जाता है, आयुर्वेद डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं और ये बहुत फायदेमंद है जी। एक ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, पर किसी ने मैंने नहीं लगता टेस्ट कराया होना या टेस्ट की रिपोर्ट ली होनी। देखो जी, क्वेश्चन तो मैं आपका काफ़ी अच्छा है, और मैं मोस्टली मेरा मानना ये है, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं बताना चाहता। मेरे पास एक पेशेंट आया था, है ना, तो दिल्ली की बात है, मेरे पास पेशेंट आया था, वो हमारे पास आया, हमने देखा ट्रीटमेंट करते समय उसका पाइल्स का पहले हमने टेस्ट कराया, CVC, CT, BT, HIV, SCV, LFT, KFT सब टेस्ट कराए। तो हमने जांच में पाया कि पेशेंट को HIV पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैडम थी, उनकी शादी कुछ ही दिन हुए थे, 15-20 दिन हुए थे। मैंने बुलाया अकेले में, बेटा मगा आपको पता था इनको HIV है? उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मुझे पहले नहीं पता था, हमने लव मैरिज की है, ठीक है, और जब अब हम आपके पास आए हैं, आपसे ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो हमने आपको जांच करा, जब हमें मालूम पड़ा, तो उसका मतलब तो नहीं 15 दिन में बीमारी पड़ी है, पहले से ही थी, या उनको पता नहीं था, या उन्होंने एक दूसरे से शेयर नहीं की। अगर शायद शादी से पहले उन्होंने अपने एक दूसरे के टेस्ट करा लिए होते, जो बीमारी लड़के को बनी है शायद वो उसकी वाइफ को नहीं बनती। मतलब ये टेस्ट पहले HIV का कराना चाहिए, करा लेना चाहिए, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। और किहड़े-किहड़े टेस्ट कराने चाहिए? देखो और तो देखो चल जाता है, काले पीलिए का है, HIV टेस्ट, ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर बीमारी जाती है। और इसको देखो आज के समय में भले ही कितनी टेक्नोलॉजी आ गई हो, पर जो नाम ऐसा आता है ना HIV का, लोग साथ में कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਛੂਆਛੂਤ की बीमारी मानते हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਛੂਆਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ तक कि रोटी नहीं खाते, नहीं कहते, घर वाले नहीं कोऑपरेट करते, ये तो चलो कोई भी है। मेरा मानना ये, अगर जो उन्होंने शादी की वो बीमारी लड़के को थी, और वो लड़की ने जब लड़की हमारे पास आई तो उसने अपने खुद के भी जांच कराए बाद में, तो उसको भी पाई गई प्रॉब्लम ये। तो मेरा मानना है अगर उनको पहले पता होता, एक दूसरे के टेस्ट होते, तो शायद ऐसा नहीं होता। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, भी उन्होंने कोई सलाह देना चाहते हो तो ज़रूर दे सकते हो। देखो जी, बस मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे पंजाब वासियों को, जैसे आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐड आते हैं कि आप ऐसा दवाई खा लो, जड़ी बूटी ले लो, हमसे ले लो, आंवला ले लो, ये ले लो, कुछ भी है, ऐसे प्रचार के चक्कर में ना पड़े। कुदरत का दिया हमारे पास सब कुछ है, घर में ही हमारे सब कुछ मौजूद रहता है। ये हल्दे की बात करो या आंवला की बात करो, व्यायाम आप खुद कर सकते हैं, खाना पीना अपना खुद खा सकते हैं, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहें, बेफिजूल के चक्करों में ना पड़े। आप व्यायाम ज़रूर करें, गुनगुना पानी ज़्यादा पिएं, नशे पत्ते से दूर रहें, हल्का ना खाना खाएं, ठीक है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, टमाटो को सूप वगैरह ज़्यादा लें, ठीक है। मतलब ऐसा भोजन बनाइए ताकि आपका पेट साफ रहे और लैट्रिन खुल के आए। कहते हैं ना 100 रोग दफ़ा पेट सफ़ा, अगर आपका पेट साफ है तो 100 रोग आपको बिल्कुल भी नहीं आ सकते जी। वैसे ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਪੀਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ, ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਮੱਖਣ ਨਾ ਖਾਓ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। देखो जी, वो बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है, अभी दूध मत लियो, अपना दही मत खाओ, रोटी मत खाओ, ये रोटी चावल इकट्ठा मत खाओ, ये दाल मत लो, तो इंसान क्या खाएगा।
पुराने समय में लोग दूध भी लेते थे, दाल भी खाते थे, पालक भी खाते थे, मेथी की रोटी भी खाते थे, घी भी लेते थे, सब स्वस्थ रहते थे। पर क्या है, जो आजकल जो खाद है ना, प्रॉपर तरीके से उन खाद का वो जो है तो ना वो मिलावट रहती है, जिसके कारण वो मतलब नुकसान करता है। देखो खाओ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्गेनिक खाओ, अपना बढ़िया खाओ जी। कि दूध पीने से क्या होता है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है। एक दिन मैं कल देख रहा था, किसी ने कहा कि क्या होता है कि एक डाला था किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो गाय माता होती है हमारी, गाय जो होती है वो दूध देती है, और दूध जो उसके बच्चे के लिए होता है केवल वो, अदरवाइज हमें नहीं पीना चाहिए। हमारी भ्रांति रहती है इंसान की कि इंसान के लिए था, पर ऐसा नहीं है। उसका दूध में जो पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं, तो हमें दूध लेना चाहिए जी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸਰ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि लोगों में ਉਹ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਨਾਈਟ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? देखो जी, कारण ये होता है, केसर तो देखो वैसे ठंडा रहता है, और केसर जो होता है कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है, फेस के लिए भी यूज़ किया जाता है केसर। केसर दूध में डालने से उसका जो कलर होता है वो बढ़िया हो जाता है, और उसका तासीर भी ठंडा होता है। दूध कहते हैं लोग गर्म होता है, दूध गर्म, उसका तासीर ठंडा होता है। दूध का जो दही लस्सी होती है उसका तासीर गर्म होता है, क्योंकि शाम के टाइम आप दही लेंगे तो उसके हाइपर एसिडिटी बनती है, पित्त बनता है, पित्त दोष बढ़ता है। शाम के समय दही नहीं लेनी चाहिए 4 बजे बाद, क्योंकि उससे एसिडिटी बनती है, खट्टी डकार, एसिडिटी, जलन सीने में बनता है। और दूध तो जी कभी पुराने समय से यूज करता है ना, कि ये तो हमारे के पुराने कई हज़ार वर्षों से या कई सालों से लोग देखते हैं कि लोग है, जो आपने क्वेश्चन पूछा तो उस टाइम तो दूध दिया जाता है कि उससे भी लोगों में लगता है भी हड्डियों में जान आएगी, गोड़ों में जान आएगी, ताकत आएगी। क्योंकि पुराने समय तो बस ये खाने पीने दूध घी दही का ही होता था। आज के टाइम में तो लोग देखो, शादी से पहले लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, भाई सेक्सोलॉजी डॉक्टर के पास चले गए, भाई ये दवाई ले लो, ये दवाई खा लो, बाजार से ले लिए। लोगों को लगता है कि मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, पहले अनफिट अपने को महसूस करने लगता है, क्योंकि लोगों में वो स्टेमिना नहीं रहा, बच्चों में क्योंकि एक्सरसाइज नहीं रही तो स्टेमिना नहीं रहा। तो आजकल लोग दूध कम पीते हैं और बाजार से सिडनाफिल बोतल लेके खाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं गोली लेते ही एकदम से बिल्कुल घोड़ा बन जाऊंगा, पर वो जो चीज़ नुकसान करती है एक बार तो घोड़ा बना देती है, अगले दिन बिल्कुल जीरो कर देती है जी। ये ਹੁੰਦਾ ਹੈ बिल्कुल होता है। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀल्स ਅੱਜਕੱਲ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਫਸਟ ਨਾਈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ शायद मैं भी कैमरे पे सवाल नहीं पूछ सकता। वो देखो जी, लोगों के पास जाते हैं, मोस्टली लोगों को ये डॉक्टर का ही काम करते हैं, जो फर्जी डॉक्टर होते हैं अपनी दवाई बेचने के लिए कहते हैं। तीजा, आपने तो बचपन में हस्तमेतन किया है, हस्तमेतन करने से आपकी नसों में कमजोरी हो गई है, इतने % कमजोरी हो गई है। वैक्यूम की मशीन ले लेते हैं, उसको कर देते हैं, इतने मशीन हो जाती है। दूसरी मशीन वो क्या बताएगी बेचारी, इसमें क्या है कमी है क्या नहीं है, क्योंकि मानते हैं कमजोरी है, आयुर्वेद में इसका जिक्र भी किया गया है, बाजीकरण चिकित्सा भी है, मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। वीर्य की कमी हो जाती है, हस्तमेतन करने से नुकसानदायक तो है ही, पर उसका हाँ देखो बचपन की गलतियां आजकल बहुत सारी ऐड देखते हैं, पेपर में देख लो आप, देखते हो बचपन की गलतियां, इस दिन फलाने दिन डॉक्टर यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलो, शुक्राणु की कमी, दांत का गिरना, संपन्न दोष, नामर्दी, 1 घंटे में मर्द बने, बहुत सी चीज देखने को मिलती है। ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਸੀਗੇ। पहले मर्दानगी जैसे कि जो कुश्ती करता है, पहलवान है, एक्सरसाइज करता है, जो जिसका शरीर फिट है, लोगों ने आज के टाइम इससे जोड़ दिया, और ये बहुत ही गलत धारणा है, पर ऐसा नहीं है। और वो बताना चाहूँगा, इस प्रकार की जो बीमारियाँ होती है, जैसे कि वीर्य पतले करने से हो जाता है, अभी चलो मानते हैं गलती हो गई बचपन से, आजकल बच्चे जागरूक भी हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं करते। आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी भी है जो उसको ठीक भी करती हैं और उसके फ़ायदेमंद भी रहते हैं, पर खाना पीना जो है अपना, खाने पीने के कारण बीमारियाँ होती है, पेट की मस्तिष्क के कारण बीमारी होती है। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो आपकी जो नींद पूरी नहीं होगी तो आप पूरी तरह से अपने
पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उससे नींद नहीं होगी। जी। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਕੜਾਈ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆर्डर कर देते देखो जी, आप भी समझदार हैं, पब्लिक को भी पता है, हर एक को पता है कि पनीर में मिलावट आती है। मैं ये मत सोचिए कि जो सी डॉक्टर और बताते मैं भी सेम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्पेशल पनीर बनवा के मैं मार्केट में बेचता नहीं, पहली बात तो पनीर जो होता है मिलावट आती है। कई जगह घर में बनाया होता है, पर लोगों को क्या है ना, घर में बनाने के लिए टाइम ही नहीं है ना। आजकल समय से नींद पूरी आ जाए, खाना टाइम से हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। पनीर जो होता है नुकसान इतनादायक करता है कि वो प्रॉपर पनीर नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं करता है, रबर टाइम में होता है वो, तो नुकसानदायक है। अगर दाल जो होती है, कहीं भी आप ढाबे में जाओ या रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे तो दाल जो होती है मोस्टली फ्रेश ही मिलेगी आपको। मक्खन का देख लो, न्यूट्रीलाइट वगैरह मक्खन होता है, नुकसान करता है। जो आपको जो वाइट मक्खन घर में निकलता था पुराने समय में, जो माताएं निकालती थी बच्चों के लिए, दूध से निकलता था, तो कितना टेस्टी होता था। आज के समय में नहीं है। पुराने समय में जो चूल्हे की रोटी वगैरह, रोटी में धर के अपना मक्खन वैसे धर के लोग खा लेते थे, अपना सीत वगैरह लस्सी वस्सी के साथ ले लेते, तो ठीक रहता था, पेट भी खरीदता था और बच्चे को भूख भी लगती थी, यूरिन जैम बनते थे, पैनक्रियाज मजबूत रहती थी, हाथों में इन्फेक्शन नहीं होता था, लीवर मजबूत रहता था। जी। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ बहुत कुछ नजर आ रहा है, जिसके करके ये गलतियां हो भी जाती। देखो, गलती इसमें बच्चे की नहीं मान सकते, क्योंकि आजकल ऐसी लोग रील्स बनाते हैं, वो बहुत ही गलत मानता हूँ मैं। और समय से पहले बच्चों को मोबाइल देना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी चीज़ बताओ। अब बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, पेरेंट्स दूसरे रूम में बैठे हैं, बच्चा अलग से बैठा है, बहाने मारते हुए दोस्तों के साथ बैठे हो, तो गलत चीज़ है। तो क्या है, गंदी चीज़ें जल्दी पकड़ता है इंसान, अच्छी चीज़ें कम देखता है, गंदी चीज़ें जल्दी पकड़ते हैं बच्चे। जी। नुकसान भी हो जाता। देखो, नुकसान तो है ही, वो तो अपने आप जमाने के साथ खेल रहे हो ना, नुकसानदायक है ही। बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो दो तब प्रॉपर पेरेंट्स साथ हो, अपना मोबाइल दीजिए, हम कब मना करते हैं। ये जरूरी थोड़ा है कि बच्चों को मोबाइल से ही गेम खेलना है, और भी चीज़ें खेलने के लिए होती है। पुराने समय जैसे कि लुकुम लुकवाई, मतलब दौड़ मारते थे बच्चे, कुश्तियाँ करते थे, अपना व्यायाम करते थे, कसरत करते थे, है ना, खाने पीने में ध्यान देते थे। ये चीज़ें दीजिए, क्योंकि जो बचपन का खाया है वो ही ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਚੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਜੀ ਇਕੱਠੇ बैठे टीम बना के खेलते होंगे। अब हो तो गया था ये, या फ्री फायर खेलते। जब वो पबजी गेम आया था, हमारे पास इतने पेशेंट आते थे, हमें ये पूछता था, भैया पबजी खेलते हो? पबजी दे करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेशेंट्स आते थे। हाँ पबजी ना जी, मैं कैसे पता, मैं बेटा जब तो तुझे कब्जी हो गई। तो नींद नहीं पूरी होती थी। कुछ बच्चे आते थे, उनके पेरेंट्स बताते थे, उनका इतना गलत साइड इफेक्ट होता था कि आँख मीचे मार दे गोली चल गई आजा, मतलब करते रहते थे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना बच्चे। उनके दिमाग जो जैसा आप सोचोगे रात को सोते थे, पूरे दिमाग पूरा तो वही चलता रहता था, और नींद ही नहीं आती थी। खेलने, कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया, आपने देखा होगा, पबजी के दौरान भी देखा आपने, कितने बच्चों ने सुसाइड भी किया है। वो ऐप मेरे ख्याल से अभी बंद भी हो गई, पता नहीं इस बारे में मुझे इतना इन्फॉर्मेशन। और आ गई फ्री फायर, आ गई और आ गई लोग। हाँ, तो उससे बच्चों को इतना कब्जी रहने लग गया था, टट्टी इतनी टाइट हो गई थी, बिल्कुल ऐसे लीन टाइम में हो गई थी, पत्थर जैसे जम जाती थी लोगों की। मतलब गेमा करके भी नुकसान, गेम करके कि सोते ही नींद पूरी नहीं होगी ना। जिसका अच्छा आहार विहार निंद्रा अच्छी होगी, वो इंसान स्वस्थ रहेगा। आहार, खाना पीना, विहार, घूमना फिरना और नींद जिसकी पूरी अच्छी होगी। जिवें गाना नहीं सी दंगल च, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। मतलब हर किसी प्यो नूं उदा तो बनना चाहिए जो बच्चे सही सूत कर। देखो जी, अगर बच्चों को आप, आंखों का डर बहुत होता है, मैं ये नहीं कहता बच्चों को मारो, ऐसा नहीं है, आंखों का डर बहुत होता है। अगर पहले पुराने समय में आपको पता है,
आजकल टीचर बच्चों पे हाथ उठा दे तो बच्चे कहते हैं मैं केस कर दूंगा, केस कर घर में बता दूंगा। पेरेंट्स भी है गुस्से में आगे चले पड़ते हैं, ये कर देंगे, वो गलत है। पुराने टाइम में पहले गुरु की इतनी इज्जत की जाती थी, बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। और अब आजकल देखो बच्चे कितने, आजकल रेशो क्या है, लड़के इंटेलिजेंट है, लड़के थोड़ा कम पढ़ते हैं क्योंकि वो बिगड़ जाते हैं। और खाना पीना लोगों का तो मेन है ही नहीं, मेन चीज़ है। और मेन चीज़ क्या है, आज के समय में लोग ज़्यादा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, किताबों पे कम देते हैं, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, खाने पीने में ध्यान दो, जो आपकी उम्र उसमें ज़्यादा ध्यान दो ना, अपना फोकस करो। एक वैसे ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਂਡ 'ਚ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ऐसा नहीं है सर कि मर्द का पेट साफ हो जाता है, लेडीज़ का नहीं होता है। ये क्वेश्चन तो चलो बता देता हूँ, पर मोस्टली लेडीज़ क्या होती है, लेडीज़ जैसे इंसान जेंट्स जो होता है पानी भी पी लेता है, बाहर घूमता फिर लेता है। लेडीज़ वो मोस्टली होती है घर में ही रहती है, खाना पीना कम होता है, अच्छे से पानी नहीं पाते कि उसका पूरा दिन फोकस जो होता है, भी सुबह उठते हैं मैंने ब्रेकफास्ट बनाना बच्चों के लिए, फिर दोपहर में लंच बनाना है, शाम को फिर चाय बनानी है 4 बजे ससुर के लिए, शाम को फिर डिनर बनाना है अपना, है ना, बच्चों के स्कूल कपड़े प्रेस करने हैं और चीज़ें हैं। उसका मतलब वो क्या है, समर्पित रहती है। लेडीज एक अच्छी माँ भी है और अच्छी बहन भी है, अच्छी बच्ची भी, मतलब हर एक चीज़ से है। क्यों उस में इतने बंदों को देख रेख करने के लिए अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रहती। पानी कम पीने से क्या है, कब्ज की दिक्कत रहती है जी। पानी मतलब सीधी जी गल है, जे पानी घट पींदे हो जी, ते अब वो पानी पीना, खाना समय पे खाना, पपीता सीजनल फ्रूट्स लेना। लेडीज़ों में क्या होता है, अपना खाने के चक्कर में क्या होता है, दिन में जैसे कई बार 2 बार 3 बार चाय पी ली, जैसे 3-4 लेडी जैसे कई बार पड़ोस से आ जाती है, चलो चाय पी ली, चाय बहुत पी लेती है। चाय से भी एसिड बनता है, चाय भी नुकसानदायक होती है। इसलिए मैंने बोला था कि आपसे थोड़ी देर पहले कि ग्रीन टी ले लो अपना, भाई चलो बच्चों का ध्यान हो तो आप अपने लिए भी ध्यान रखो, ठीक है, पूरी फैमिली का ध्यान रखो कि पेट ਚਾਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ ਚਾਹ पी लो, दोपहर फिर चाह पी लो, शाम ਨੂੰ फिर चाह पी लो, फिर रात ਨੂੰ फिर चाह पी लो। देखो जी कई बार आते हैं, कई बार ऑफिस में हमारे पास भी आते हैं, मिलने के लोग भी आते हैं, ये कई बार हम भी जाते हैं, कहीं भी जाओगे पहले तो ये होगा, जाते ही पानी आ जाएगा, पानी के बाद चाय आ गई, बिस्कुट आ गए, नमक जी चाय ले लो, आ गए। दूसरे फिर दूसरी जगह आएंगे जी चाय ले लो। कई बार जैसे शादी होती है, शादी में लोग कार्ड बांटने जाते हैं, कहीं जाते हैं, आपको पता है 10 जगह चाय होती है। मतलब खुशी से पहले मतलब इतना एसिड हो जाता है शाम तक की चाय आ जाती है कि शाम को खाना खाने का इंसान का मन ही नहीं करता। बिल्कुल। और कई जगह तो ऐसे देखते छोड़ते चाय परांठे लेने भाई खाना है, फिर दिन में फिर खाना नहीं खाता है, इसलिए लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। और एक जैसे शैम्पू वगैरह जो यूज़ करते हैं आजकल आ गए, ये शैम्पू लगा लो, ये लगा लो, उससे भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों के बाल काफ़ी उड़ रहे हैं शैम्पू ना। हाँ जी उसके लिए देखो महंगे शैम्पू ने आजकल तो 3-3 हज़ार की कई शैम्पू की बोतल तक हुई भी है। देखो 3,000-4,000 पहले शैम्पू यूज करो, फिर कंडीशनर यूज करो, फिर उसको हेयर ड्रायर मारो, उसके बाद इसमें सीरम यूज करो, मतलब कई हज़ार रुपये का महीने मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये तो बालों में लग जाता है खर्चा। इससे अच्छा अपना एक लावड़ा लाओ, सिक्का लाओ, इटाई लाओ, रात को भिगो के निकालो, उसको कोट किया उसका वो बनाकर उससे वॉश करो अपना, बढ़िया आपके बाल भी मजबूत हो जाएंगे, हैं, डैंड्रफ भी नहीं होगा और किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। शैम्पू के साइड इफेक्ट की शैम्पू के तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, डैंड्रफ हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, बहुत चीज़ें यूज़ होती है। हफ्ते में 1 या 2 बार सरसों का तेल यूज़ करो, सबसे बढ़िया होता है सरसों का तेल। कि पुराने समय आपने देखेंगे बड़े बुजुर्ग कोई ऐसे होंगे जैसे सरसों का तो तेल लगाते हैं, उनके बिल्कुल ब्लैक आज तक बाल पड़े, टूटते ही नहीं है। आजकल देख लो नए ओल आ जाते हैं, कोई से जंगली ओल आ गया, कैसे कोई ओल आ गया, मैं नाम नहीं बताता, 500 रुपये का दे दिया, 1 महीना लगाओ, 15 दिन लगाओ, वो एक बिजनेस है वो, है ना। लोग सोचते हैं कि सब कुछ कराया मिल रहा है, भाई आप लोग खुद भी करो अपने लिए। ये जो शरीर आपका एक अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलना, इसको इसलिए आप अपना ध्यान रखो, फोकस रखो,
खाइए जी पीजिए अपना, मतलब शरीर को फिट रखिए आप जैसे जैसे करके। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, आप देखो कोई भी गाड़ी ले लो आप, जैसे कोई भी गाड़ी ले लो, सेंट्रल डिफेंडर कोई भी गाड़ी ले लो आप, अगर आप उसके समय पे आप वो नहीं करोगे, मेंटेनेंस नहीं करोगे, या गाड़ी का तेल चेंज नहीं करोगे, या सर्विस नहीं कराओगे तो बैठ जाएगा। ऐसे हमारा शरीर है जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। वेलकम जी। ਸੋ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।